अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। लचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने जेएसएमसी के अहदेदारों और गणेश उत्सव कमेटी के कारकुनों का एक मुश्तरका इजलास तलब करते हुए गणेश निमज्जन के इंतजाम पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि गणेश की मूर्तियों का अलग अलग दिनों में विसर्जन किया जाए तो नागयानी हादसात को टाला जा सकता है। नीज बल्दिया, रोड एंड बिल्डिंग्स और पुलिस को इंतजाम करने में भी मदद मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी और विसर्जन के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस ने गैर मामूली बंदोबस्त किए। बल्कि की बिला खलल सरबराही को यकीनी बनाया गया है। इजलास में जोनल कमिश्नर ईस्ट श्रीनिवास रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस LB नगर सनप्रीत सिंह के अलावा मौके में जात बल्दिया, वाटर वर्क्स, बरखी और RMD के अहदेदारों ने शिरकत की। ఇష్యూస్ అన్ని సార్ట్అవుట్ చేయడం జరిగింది. మా కమిషనరేట్లో ఈ సరూర్ నగర్ తప్ప ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అంటే సఫీలు కూడా, తర్వాత కాపరా, చెర్లపల్లి, రాంపల్లి, ఏతులాబాద్, తర్వాత ఇనాంగూడ, జల్పల్లి, మంత్రాల చెరువు, ఈ నిమజ్జనం స్థలం దాదాపు 10,000 మంది విగ్రహాలు అది నిమజ్జనం జరుగుతున్నాయి. ఈ అన్ని గణేష్ మండపానికి మన జియో ట్యాగింగ్ తర్వాత పాయింట్ బుక్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. ప్రతిరోజు అక్కడ పెట్రోలింగ్ రిపోర్ట్ కావచ్చు, మన పెట్రోల్ మొబైల్ దాని ద్వారా చేస్తున్నారు. ఈ స్థానిక కార్యకర్తలు కూడా ఆ మంటపం దగ్గర వాళ్ళు పక్కాలని ఉండాలని చెప్తున్నారు. ఈ 10 days మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇదే పీరియడ్లో మొహరం ఉంది, ఇదే పీరియడ్లో 9వ రోజు అసెంబ్లీ సెషన్ కూడా ఉంది. కాబట్టి ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రికాషన్స్ అది, తర్వాత ఇంకా ఏమైనా యాంటీ సాబోటాజ్ దానికి సంబంధించి అన్ని ముందు జాగ్రత్త చర్య మనం తీసుకొని అందరి సహకారంతో ఈ గణేష్ ఫెస్టివల్ ఒక ఘనంగా మనం సెలబ్రేట్ చేస్తాం. ఈ అన్నిటి కోఆర్డినేషన్ చాలా బాగానే ఉంది. గత 3 సంవత్సరాల నుంచి ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి సమస్య మనకు రాలేదు. ఈ సంవత్సరం కూడా చాలా పక్కడబందిగా చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. సీసీ కెమెరా మొత్తం మా కమిషనరేట్లో ఇప్పుడు ఈ అన్ని నిమజ్జన స్థలాన్ని కలిసి 198 అది ఫిక్స్ కెమెరా, తర్వాత 7 PTZ కెమెరా 360 డిగ్రీ, టోటల్ 205 కెమెరాస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. తర్వాత మొబైల్ 3 వెహికల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, కెమెరా మౌంటెడ్ వెహికల్, ఆ 3 వెహికల్స్ ఉన్నాయి. అది కూడా ప్రొసెషన్ రూట్లో. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ విగ్రహాలు ఇప్పుడు నిమజ్జనానికి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. మనం 8 ప్లాట్ఫామ్ల పైన 8 కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అట్లాగే దాదాపుగా ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్యాని కోసం 8 మొబైల్ డైరెక్ట్, అట్లనే 220 మంది ప్రత్యేక లేబర్ 3 షిఫ్ట్లలో పనిచేయడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అట్లాగే బ్యారికేడింగ్ కానీ, రోడ్ డెవలప్మెంట్ కానీ, అట్లనే మన ఇంకా ఎంటమాలజీ సపరేట్గా 3 షిఫ్ట్లలో పనిచేయడానికి, అట్లనే మన ఎంటమాలజీ అండ్ హార్టికల్చర్, లైటింగ్, R&B మరియు పోలీస్ అన్ని శాఖల సహకారంతో మొత్తం ఏర్పాట్లు పూర్తయినాయి. సో ఇప్పుడు మనకు దాదాపుగా ఈ యొక్క సరూర్ నగర్, LB నగర్ ఏరియానే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇబ్రాహీంపట్నం, అబ్దుల్లాపూర్ నుంచి కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి పోయినసారి జరిగిన వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈసారి 13, 14, 15వ రోజు వరకు కూడా ప్రత్యేకంగా ట్రైన్లను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. సో దీనికి తగ్గట్టుగా అన్ని శాఖల అధికారులతో మనం ఒక కంట్రోల్ రూమ్ పెట్టుకున్నాం. దాని దగ్గర నోడల్ ఆఫీసర్లు కూడా మనం ఇక్కడ మన విజయకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో డిప్యూటీ కమిషనర్ అట్లానే అన్ని శాఖల అధికారులతో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఎప్పటికప్పుడు శానిటేషన్ విషయాల్లో కానీ, అట్లాగే ట్రైన్ల విషయంలో కానీ, రోడ్స్ సంబంధించి కానీ, తర్వాత పాటోల్స్ గుర్తించడంలో కానీ, లైటింగ్, R&B అట్లనే మెడికల్ క్యాంపులు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది DMH ఆధ్వర్యంలో. సో అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా మనం పూర్తయినాయి. రేపటి నుంచి చిన్న చిన్న విగ్రహాలు నిమజ్జనం కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా ట్రైన్లు కూడా రావడం జరుగుతుంది. సో అన్ని పోలీస్, ట్రాఫిక్, CPDCL, మెడికల్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్, ఎంటమాలజీ, శానిటేషన్ అన్ని శాఖల కోఆర్డినేషన్ తోటి ఒక కోర్ కమిటీ లాగా ఏర్పాటు చేసుకొని ఎప్పటికప్పుడు ఏర్పాట్లు పడుతుంది. ఎంతమంది సిబ్బంది? పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది 225 మందిని నియమించుకోవడం జరిగింది దీంట్లో ప్రత్యేకంగా దీనికోసం. అట్లనే క్రేన్లు కూడా 3 షిఫ్ట్లలో 8 క్రేన్లు పనిచేస్తాయి. సో అంటే మనకు ఒక్కొక్క రోజు రేపు 2 క్రేన్లు వస్తాయి, 5th డే 2 క్రేన్లు, లాస్ట్ 10th, 11th మనకు మేజర్ 11th రోజు 8 క్రేన్స్ పనిచేస్తాయి ఇక్కడ. అట్లానే ఎంతమంది వాళ్ళు కూడా 60 మంది ప్రత్యేకంగా ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేయడానికి సపరేట్ సిస్టమ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. 5th డే, 7th డే, 9th డే అండ్ 11th డే కూడా ఎక్కువ మంది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా మెట్రో బోర్డు వాళ్ళతో మాట్లాడి వాటర్ ప్యాకెట్స్ కానీ, సాకెట్స్ కానివ్వండి, అట్లానే లైటింగ్ విషయంలో కానివ్వండి, మొబైల్ డైరెక్ట్స్ కానివ్వండి, అడిషనల్ లేబర్ కూడా పెట్టుకోవడం.
మన సిపి గారి ఆధ్వర్యంలో మీటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి భాగ్యనగర్ हैदराबाद के इलाके दबिलपुरे में बीबी के अलावे में चांदराज से तारीखी बीबी अलम की इस्ताकी के साथ की अकीदतमंदों की हाजिरी का सिलसिला शुरू होगा। अलावे बीबी के मुतवली अलीउद्दीन आरिफ ने मीडिया को बताया कि निज़ाम दक्कन की हुकूमत में कायम इस अलम और अलावे के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से अब तक कोई माली इमदाद जारी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली बीबी के अलम पर हाजिरी देने वाले हैं, वो इस सिलसिले में उस वक्त उनसे नुमाइंदगी करेंगे। हैदराबाद का मुहर्रम सारे दुनिया में मशहूर है और ये तेलंगाना का मशहूर व मारूफ मुहर्रम है। आशुर खाने अलावा बीबी जहाँ बीबी के अलम इस्तार होते हैं, हम यहाँ के मोरूसी मुतवली मुजावर हैं। और ये अलम मुबारक की तारीख ये है कि अलम मुबारक के अंदर जो आपको नीला नीला नज़र आता है नक्श, वो असल में उसके अंदर तबरुक है, जो लकड़ी है वो इस सैयदा कौनैन के इस्तेमाल करता मुबारक के एक तख्ते का पीस है जो कुतुबशाही ज़माने में आया था। वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे पीछे सोने का पत्थर दे के उसको तहफ़्फ़ुज़ किए हैं। और ये तारीख़ अलम है, बड़ी अज़मत और से इस्ताद होते हैं। जैसे चाँद नज़र आ गया वो ऑफिसरों की मौजूदगी में उसको बरामद करते हैं। फिर रात तमाम हमारे अलमबरदार साहब हम सब मिलके उसकी तैयारी करते हैं। तैयारी करके हुआ तो सुबह फजर के बाद उसको इस्ताद कर देते हैं। तो 10 दिन रात दिन जो आशुर खाना खुला रहता है। कसरत से ज़ाहिरीन अक़ीदतमंद दूर दराज से आते हैं, अपना नजराना अक़ीदत पेश करते हैं, नज़र न्याज करते हैं। और हर रोज़ जो है जनानी मजलिस होती है, शाम में जो है मर्दानी मजलिसों का सिलसिला रहता है। इस तरह से रात दिन जो है लोग यहाँ आते हैं, ज़ियारत करते हैं, मजलिस मातम होता है। इससे आशुर खाने की अहमियत यह है कि यहाँ बिला मज़हब व मिल्लत लोग आते हैं। बीबी के अलम की जो छतरी जो है यूम आशुरा उठाई जाती है, वो हिंदू बिरादरी की जानिब से उठाई जाती है, ख़ानदानी लोग हैं वो। माही मरतब की जो उठाते हैं वो भी हिंदू फैमिली है, वो ज़माने क़दीम से सिलसिला बा सिलसिला उन्हीं की खिदमत है। 22 कैंडिडेट मशाल बरदार हैं। इस तरह से यहाँ की गंगा जमनी तहसीब वाज़े है और यहाँ की आज़ादारी भी जो है मशहूर है और यहाँ के नोहे भी मशहूर हैं। इस तरह से मुहर्रम की एक अपनी शोहरत है। यूम आशुरा दिन में 1 बजे अलम मुबारक बड़ी शान और शौकत और अज़मत से जो हाथी पर निकलते हैं। इस साल 17 अप्रैल को हाई कोर्ट की जानिब से नागुज़ीर हालत की बिना पे हाथी को बैन कर दिया, जिसकी बिना पे हुकूमत तेलंगाना जो है बेजापुर कर्नाटक स्टेट से किराए का हाथी फराहम कर रही है। हम इसके मशहूर हैं और ये इंशाल्लाह 5 के दिन रात में आ जाएगा। 6 के दिन जो है इसकी रिहर्सल ट्रायल होगी, पूरा रास्ता बताया जाएगा हाथी को। और इसकी जहाँ जहाँ भी यूम आशुरा मुबारक जाते हैं पूरे उसकी ट्रेन कर दिया जाएगा। फिर जो है यूम आशुरा इंशाल्लाह हस्बे मामूल अलम मुबारक बरामद होगा। जैसे मुहर्रम की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है, ये इमाम हुसैन की याद ताज़ा हो जाती है। हुसैन मिन्नी अन्ना मिन्नल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। उस करबला में जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से जो शहादत की, इस्लाम ज़िंदा हुआ है वहाँ से, उसके लिए जो यूम आशुरा बिला मज़हब मिल्लत लोग जो है इसका नजराना यकीनन पेश करते हैं, आंसुओं की गम में शरीक होते हैं। और मातमदार उसके जो है इब्न ज़हरा वावेला की गूंज में हाथी के पीछे जो है मुख्तलिफ गुरु यानी हैदराबाद के जितने गुरु हैं वो अपने अपने नौखानी करते हुए जो है आज़ादारी की जो है और इमाम हुसैन के ताज़ियत पेश करते हैं, नजराना मातम का नजराना पेश करते हैं और अपनी वापसी का इजहार करते हैं। इस तरह से बिला मज़हब व मिल्लत ये जुलूस जो है शाम में 7 बजे नदी चादर घाट के अख्ताम को पहुँचता है मस्जिद इलाही के पास। परगी के साबिक़ एमएलए और विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर राम मोहन रेड्डी ने जिला रंगारेड्डी में लक्ष्मी देवी ज़ख़ारियाब की तामीर का मुतालबा किया ताकि किसानों को दरपेश मुश्किलात का इजाला हो सके। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इससे जिले रंगारेड्डी और विकाराबाद दोनों के काश्तकारों को काफ़ी मदद मिलेगी। पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन का लक्ष्मी देवीपल्ली रिजर्वायर बनाने के वास्ते 10 टीएमसी से
बनाने के वास्ते 6 करोड़ रुपए और 90 लाख्स उसके वास्ते सैंक्शन कर चुके थे, मगर ये सरकार आने के बाद 13 से लेके 19 तक 1 रुपए भी वहाँ पे खर्च न करे, वो ऐसी पेंडिंग है। और चीफ मिनिस्टर साहब परसों 4 दिन पहला महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट गए थे, करबेना, वनापर्ती, उधर नागर कर्नूल, उधर जाके उधर के प्रोजेक्टों के बारे में बात करें। मगर 2013 का जो जीवो है ये लक्ष्मी देवी पल्ली, ये हैदराबाद को पानी दे सकते पीने के वास्ते, और पुराना रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट अब ऐसे विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट को किसान लोगों को जो है ना खेती के वास्ते भी पानी दे सकते। इसके बारे में कुछ बात भी नहीं कर रहे उन्होंने। कम से कम 300 किसान लोग फांसी डाल के दवा पी के मर चुके हैं। उनके बारे में मैं पिछले असेंबली सेशन में हमारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए को लेके, जाना रेड्डी साहब को, जीवन रेड्डी साहब को, भट्टी विक्रमार्का को, सबको लेके हम किसान लोग जो फांसी डाल के मर गए, बोमपल्ली बोल के एक गाँव था दोमा मंडल में, बरगी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ पे ले गए। बहुत गाँवों को हम फिर चुके हैं, मगर ये सरकार उसके बारे में बात नहीं कर रहे। और मैं राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर ऐसा वक्त प्राणहित चेवेला का पानी बरगी के वास्ते किसानों को आने के वास्ते सैंक्शन करा लिया था। वो कम से कम 1100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वो सैंक्शन और कॉपी भी है मेरे पास। मगर ये सरकार मेदक डिस्ट्रिक्ट तक रीडिजाइनिंग में रोक दिया है, वो पानी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट को आ रहे नहीं। तो हम ये पूछ रहे सरकार को, परसों संडे के दिन हम बड़ी जलसा करे होंगे, वो मीटिंग में जो है ना अपना तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के 3 MP से PCC प्रेसिडेंट के साथ, उत्तम कुमार रेड्डी साहब के साथ, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, रेवंत रेड्डी, सब बड़े बड़े सीनियर लीडर पूरे आके लक्ष्मी देवी पल्ली प्रोजेक्ट बनाना, वहाँ पे रिजर्वायर पिछले कांग्रेस सरकार में कैसा 10 TMC का बनाना बोल के वो प्रपोजल DPR में था, वैसी बनाना। वैसी चेवेला जो प्राणहिता चेवेला है उसको भी लेके आके वो पानी भी ये प्रोजेक्ट में मिलाना। तो गोदावरी पानी, कृष्णा पानी दोनों मिलके हम आखिरी में है, गोदावरी का भी हम आखिरी में लास्ट में है टैलेंट, और कृष्णा का भी हम आखिरी में। इसलिए गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट के बारे में सीरियस लेके जल्द से जल्दी टेंडर्स कॉल करना बोल के हम ये मीटिंग कर चुके हैं। ये मीटिंग को जो नेता लोग आए और आप मीडिया सब हमको सहकार करे, इसके वास्ते आपको धन्यवाद देने के लिए हम ये प्रेस मीट रख चुके हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव तिरुपति के मंदिर में हाजिरी देने के लिए आज रेणुकंटा एयरपोर्ट पहुंच गए। सदर इंटरनेशनल खादरिया फाउंडेशन मौलाना सईद खादरी ने
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में गुस्ताखी करते हुए टीजर बनाने वाले वसीम रज़वी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। वसीम रज़वी उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड का सदरनशीन है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फे से शरपसंद अनासिर मुसलमानों के फिरकों में मनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी सरगोशी की जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुतालबा किया कि मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने वाले शख्स के खिलाफ हैदराबाद में केस बुक करते हुए उसे सजा दिलाए, क्योंकि यूपी की बीजेपी हुकूमत से तो वसीम रज़वी की गिरफ्तारी या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की तवक्को नहीं की जा सकती। मौलाना सईद खादरी ने कहा कि हैदराबाद के मुसलमान अमन व अमान की बरकरारी में हमेशा पुलिस के साथ ताउन करते रहें और पुलिस को भी चाहिए कि वह अमन के माहौल को खराब करने की तमाम साजिशों को कुचल कर रख दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुझे अभी ये बात की इत्तला मिली कि मलून रावजी वसीम रज़वी जो कि लखनऊ में रहता है, इस मलून ने हद पार करके उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में गुस्ताखाना न सिर्फ हरकत की बल्कि एक फिल्म बनाने का मंसूबा बनाया, जिसमें बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सरासर गुस्ताखी करने की ये साजिश कर रहा है और मंसूबे बना रहा है, जिसको मुसलमान किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमानों की माँ है, तमाम मोमिनों की माँ है बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आखिरी वक्त में भी हजरत सैयदा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया। तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे मुबारक में आज आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक है। जो गुम्बद खजरा है वो हजरत सैयदा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुजरे मुबारक पर है। तो ये मलून रावजी, ये वसीम रज़वी को मरदूद के खिलाफ में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, और ये कौमों के बीच में ये नफरत फैलाने का काम कर रहा है। अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो ये यजीदी है, ये बेशक यजीदी है ये वसीम रज़वी, जो कि यजीद के काम कर रहा है, जो कि खानदान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था यजीद, उसी की पैरवी कर रहा है। हम सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आशिक हैं, ये अहले बैत अतहार के आशिक हैं, और उसके साथ साथ उम्महातुल मोमिनीन के भी आशिक हैं, उनके भी चाहने वाले हैं, उनके भी गुलाम हैं, अहले बैत अतहार के भी गुलाम हैं और उम्महातुल मोमिनीन के भी गुलाम हैं, खुलफाए राशिदीन के भी गुलाम हैं। हम सहाबा इकराम के चाहने वाले हैं। यकीनन तू यजीदी खानदान से ताल्लुक रखता है, तू यजीद है, तू यजीद बनकर उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी कर रहा है। हिंदुस्तान का जो सख्त से सख्त कानून है उसके तहत में इसको जो है फौरन इसको सजा मिलनी चाहिए, इसके खिलाफ में केस बुक होना चाहिए, और मुसलमान अपना पूरा एहतजाज दर्ज कराता है ऐसे शख्स वसीम रज़वी के खिलाफ। विबाई अमराज के आम होने की खबरों के दौरान वजीर सेहत राजेंद्र ने आज नलाकुंटे में फीवर हॉस्पिटल का अचानक मुआयना किया और वहां इलाज मालजी की सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रोजाना 400 तक 500 अफराद क्वारंटीन हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं और पहले के मुकाबले में अब दवाखाने में इलाज की बेहतर सहूलतें दस्तियाब हैं। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हालात से बखूबी वाकिफ हैं और इन अमराज पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम करने की हिदायत दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि मजलिस बल्दिया हैदराबाद मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव की मुहिम में तेजी ला दी है और आवाम को भी इसमें अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि मौके में सेहत से वाबस्ता तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की तनख्वाहें जो 3 महीने से अदा नहीं की गई थी अंदरून 2 यौम जारी कर दी जाएगी। एंटी करप्शन के हुकाम ने असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर सरूनगर CH शिवा कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डिप्टी कमिश्नर कमर्शियल टैक्स ऑफिस के दफ्तर वाक़ा नामपल्ली में जाल बिछाकर उस वक्त पकड़ा जबकि वो एक ताजर राजी रेड्डी से 50,000 रुपए की रिश्वत कबूल कर रहे थे।
साबिक वज़ीर दाखिला और महेश्वरम की रुकन असम्बली बी सबिता रेड्डी ने आज बालापुर के तारीखी गणेश मंडप का दौरा किया और पूजा की। उन्होंने अपनी तरफ से और हुकूमत की तरफ से गणेश विसर्जन के लिए जरूरी इंतजाम करने का यकीन दिलाया। विसर्जन के दिन सबसे पहले यहाँ की गणेश मूर्ति उठाई जाती है, जिसका हुसैन सागर में विसर्जन होता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि यहाँ का लड्डू भी सबसे ज्यादा कीमत में हर्राज होता है। ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఆ దేవదేవుని పూజ ఈరోజు మొదలు పెడతారు. పుష్కరమైన వర్షాలు పడి రైతులకు ఆశీర్వదించాలని వినాయకుడిని కోరుకుంటున్నాం. ఈరోజు హైదరాబాద్ అనగానే వినాయకుడి పూజలు నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఎంత ఘనంగా చేస్తారనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈరోజు హైదరాబాద్ వినాయకుడికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉంటే బాలాపూర్ వినాయకుడికి అంతే ప్రాధాన్యత. హైదరాబాద్లో మొత్తం ఎక్కడ చూసినా కూడా హైదరాబాద్ వినాయకుడిని దర్శించుకోవాలని ఏ విధంగా కోరుకుంటారో బాలాపూర్ వినాయకుడిని దర్శించుకోవాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తూ ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా పూజ జరిగేటట్టు చేస్తూ భగవంతుని ఆశ అందేటట్టు చేస్తూ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ వారు సహకరిస్తున్న ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా బాలాపూర్ నా నియోజకవర్గంలో చేసుకున్న అదృష్టంగా భావిస్తాను. ఈ నియోజకవర్గంలో శాసనసభ్యులుగా ఎన్నిక కావడానికి భగవంతుడి ఆశీర్వాదమే ముఖ్యమని కోరుకుంటూ ఇక్కడున్న రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ మరొకసారి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. दोनों शहरों में डेंगू की विभाग का शिकार अमूमन स्कूल बच्चे बन रहे हैं। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। गीतांजलि स्कूल सिकंदराबाद का एक तालिब इल्म बालम रॉय 3 दिन कबल डेंगू से फौत हो गया। इससे स्कूल के तलबा और औलिया तलबा में बेचैनी फैल गई। चुनांचे गीतांजलि स्कूल ने शहर के मशहूर डॉक्टरों की टीम के साथ स्कूल में एक मेडिकल कैंप मुनक्किद करते हुए बच्चों का चेकअप करवाया। दिल्ली पब्लिक स्कूल नादरगुल में कल मुख्तलिफ स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए खेलकूद और डांस के मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया, ताकि बच्चों की सलाहियतों को उभरने का मौका दिया जा सके। इस प्रोग्राम को, जिसे उद्भव का नाम दिया गया था, 27 मुख्तलिफ स्कूलों के 3000 से ज्यादा तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। मुकाबलों में शिरकत करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। स्कूल प्रिंसिपल टी पद्मा ज्योति और वाइस प्रिंसिपल किरण खन्ना की निगरानी में इस प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद के इंतजाम किए गए थे।
Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Shekpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। सीबीआई के इस दावे के बावजूद कि पी चिदम्बरम से मजीद कोई पूछताछ की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम 5 सितंबर तक सीबीआई की तहवील में रहेंगे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने चिदम्बरम की तरफ से अदालत में हाजिर होते हुए कहा कि वो जुमे तक उबूरी जमानत के लिए जोर नहीं डालेंगे। दूसरी तरफ सरकारी वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चिदम्बरम से मजीद कुछ मालूमात दरकार नहीं है और उन्हें अपनी तहवील में लेने की सीबीआई ख्वाहिशमंद भी नहीं है। मेहता के इस बयान के बाद इस बात का इशारा मिलता है कि चिदम्बरम को अदालती तहवील में भेजते हुए तिहाड़ जेल रवाना कर दिया जाएगा। साबिक वजीर चिदम्बरम ने कल अदालत से कहा था कि उन्हें अदालती तहवील में ना भेजा जाए। वाज़ेह है कि पी चिदम्बरम को 12 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और वो 12 दिन सीबीआई की तहवील में गुजार चुके हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने केरला के सैलाब के मुतासरीन में जल्द से जल्द मुआवजे की तकसीम का मुतालबा किया है। इस खुसूस में उन्होंने कबायली बहबूद उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा और चीफ मिनिस्टर केरला पी विजयन को एक मकतूब भी रवाना किया है। उन्होंने बताया कि वायनाड के कई इलाकों में जहां कबायलियों की कसीर आबादी है ज़ेरियाब आ गए थे और मकीनों को भारी नुकसान पहुंचा। कांग्रेस के साबिक सदर ने बताया कि उनके हालिया दौरे वायनाड के मौके पर कई लोगों ने मुआवजे की आजराना अदायगी की दरखास्त की थी। चीफ मिनिस्टर को लिखे गए अपने मकतूब में राहुल गांधी ने जिले मल्लापुरम में केनी कड्डू पुल की तामीर का भी मुतालबा किया और बताया कि इस पुल के मुनज़्ज़म हो जाने से कई मुआवजात कटकर रह गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।